कार्डिनल अप्रोच के बाद आर्डिनल अप्रोच स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इसके टोल एंड डिफरेंस कर्व और बजट लाइन की प्रॉपर्टीज को, इनकी शेप को स्टडी किया था। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट्स स्लोप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ बी टू प्राइस ऑफ सी. मतलब जो चीज़ आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं उसकी प्राइस आप ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आप उस चीज़ की प्राइस लिखेंगे जिसकी आप वाई एक्सिस पे ले रहे हैं. एंड it this ratio and this slope of budget line is also margin rate of substitution will be equal to margin rate of substitution at the equilibrium point. We will find the equilibrium point with the where there is budget line is tangent to the highest possible indifference curve. We also studied about the indifference curve. It is a curve which shows the different combination of two commodities which yield the same level of satisfaction to the consumer. Point J, K, L, M all points shows the same level of satisfaction to the consumer. It is convex to the origin, it is downward sloping, and margin rate of substitution is decreasing when we move from point J to point M. इसके अलावा बजट लाइन की प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा कि बजट लाइन change its location when there is change in consumer income, and budget line also its slope will change when, or it may change its location when there are changes in the price of the commodities. An indifference curve shows all the combination of two products A and B that will yield the same level of satisfaction or total utility to a consumer. Indifference curves are downward sloping, indifference curves are convex to the origin, and technically the slope of an indifference curve at each point measures the margin rate of substitution of the combination of two goods represented by that point. The slope or margin rate of substitution shows the rate at which the consumer who possesses the combination must substitute one good for the other good. In properties के बाद today we have to study what is the indifference curve maps. When we draw many indifference curves on given axis, we say that it is the indifference curve map. The single indifference curve reflects some constant level of satisfaction. For example, at point I3, the level of satisfaction is same for the consumer at this indifference curve. But at the higher points where the quantity of both goods has increased, consumer has higher level of satisfaction. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नया इंडिफरेंस कर्व ड्रा करते हैं which is at the right side of the original indifference curve. It is I4 and all combination on I4 give higher level of satisfaction to the consumer than the combinations on the I3, and all the combination on the I2 give the lesser level of satisfaction to the consumer than all combination on I3. So an indifference curve match, each curve reflects a different level of total utility and therefore these curves never cross each other. Indifference curves की जो प्रॉपर्टी एक और है वो ये है कि they never cross each other. It is not possible by definition. For example, अगर हमने ये कहा है कि I4 जो है ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है और I3 लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यू से दैट फॉर एग्जांपल ये एक रफ ड्राइंग में ड्रा कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि ये एक लोअर इंडिफरेंस कर्व है, ये लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जनरेट कर रहा है और ये हायर इंडिफरेंस कर्व तो मैंने हाफ ड्रा किया, ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्रा कर रहा है. साथ ही हमने ये कहा कि जो भी इंडिफरेंस कर्व ओरिजिनल कर्व के राइट साइड पे ये इट इज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है,
लेकिन जो लोअर लेवल पे लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है एंड दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर, आप इस तरह से ड्रा करते हैं और ये आपका जो है ये 1 है इंडिफरेंस कर्व और ये 2 है। इधर भी हम इनके नेम लिख लेते हैं, ये 2 है और ये 1 है। अब आप ये कह रहे हैं कि आपका जो 1 है ये जो कि कन्वेक्स टू ओरिजिन है एंड ये ओरिजिन के करीब है, तो ये लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप ई कह लेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट कह लें, तो ये शो करता है कि इस पॉइंट पे दोनों कर्व जो हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक कर्व उसके ऊपर सारे जो कॉम्बिनेशन है उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, लेकिन इस पॉइंट पे ये कर्व 2 जो है ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जनरेट कर रहा है 1 से, लेकिन इस पॉइंट पे ये 1 के इक्वल जनरेट कर रहा है। सो बाय डेफिनेशन इट इज नॉट पॉसिबल दैट indifference curve cannot intersect each other. Now, when we have an indifference curve map, we can find the consumer equilibrium with the help of diagram and also mathematically. Equilibrium and tangency. By definition, first of all, we draw the budget line, and budget line indicates all the combination of A and B which consumer purchase. बजट लाइन से आपको ये पता चलता है कि कंज्यूमर का टोटल बजट या इनकम कितनी है और उससे ए और बी के कौन से कॉम्बिनेशन वो खरीद सकते हैं। इन डिफरेंस का मैप से आपको ये पता चलता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो से हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन से कॉम्बिनेशन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप हम इन डिफरेंस का मैप और बजट लाइन को एक ही उनके एक्सिस चूँकि सेम है, एक्स एक्सिस पे अपने क्वांटिटी ऑफ बी लेनी है और वाई एक्सिस पे अपनी क्वांटिटी ऑफ ए ही लेनी है, तो आप इनको एक ही जगह पे ड्रा करें तो हम इनसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने ये इंडिफरेंस का मैप ड्रा किया और साथ ही हमने बजट लाइन ड्रा की है, तो वो पॉइंट जहाँ पे बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर एंड इन दिस डायग्राम इट इज शोन विद द बाय पॉइंट एक्स। ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब आप ये देखें कि ये जो कॉम्बिनेशन वाई है ये भी कंज्यूमर के लिए अटेनेबल है, लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व 2 पे और इंडिफरेंस कर्व 2 गिव लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द इंडिफरेंस कर्व 3। इसी तरह ये जो पॉइंट जी है ये इंडिफरेंस कर्व 1 पे है। कंज्यूमर अपनी बजट से ये कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है जिसमें तकरीबन 11 यूनिट वो बी के परचेज करेगा और हाफ यूनिट वो सॉरी बी के हाफ यूनिट वो कमोडिटी ए का परचेज करेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन से लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इस पे एक चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है दूसरी की बहुत कम है, so he will not purchase it. He will purchase its preferred combination which is given x जो है इसमें दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और कंज्यूमर जो है उसके लिए या हायर इंडिफरेंस कर्व है, तो he will buy this not y and not z। अब अगर आप कॉम्बिनेशन w की बात करें तो it is even on more higher indifference curve 4 and it gives more level of satisfaction to the consumer than combination x। लेकिन ये चूंकि बजट लाइन के उस एरिया में है जो कि हमने पीछे स्टडी किया था, ग्रे एरिया विच ही कैन नॉट परचेज, वो अपने बजट में इस कॉम्बिनेशन को खरीद नहीं सकता, so it is also not the point of equilibrium। At the point of equilibrium, indifference curve is tangent to the budget line and slope of the budget line is equal to the slope of indifference curve. Point X represents the optimal attainable combination of products A and B. At the equilibrium position, the definition of tangency implies that so the slope of the highest possible attainable possible indifference curve is equal to the slope of budget line. Slope of indifference curve हमने क्या कहा था किस चीज़ के बराबर है, is equal to margin rate of substitution, और slope of budget line was equal to the price of B divided by price of A. So at the equilibrium point, margin rate of substitution is equal to the रेशियो ऑफ द प्राइसेस। यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा सेंटर में, जबकि जब हम कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट की बात कर रहे थे तो इन दैट सिचुएशन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ बी। ये जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसको इट इज बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मार्जिन यूटिलिटीज। इसलिए आप कार्डिनल अप्रोच यूज करें, ऑर्डिनल अप्रोच, दोनों सूरतों में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो
सेम होगा। So when you have to show the consumer equilibrium point with the help of ordinal approach, you use the budget line and indifference curve map. On the x-axis, which for example आपकी इस बुक में आपने कम्युनिटी ए और बी ली है, आप कम्युनिटी एक्स एंड वाई भी कह सकते हैं। एनीवे आप ए और बी भी ले लें, तो एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी ऑफ बी आपने मेजर की थी और वाई एक्सिस पे आपने क्वांटिटी ऑफ ए मेजर की थी। थोड़ी सी इसके लिए आप सबसे पहले बजट लाइन ड्रॉ करें। ये मैं फ्री एंड ड्रा कर रही हूँ, आप अगर अपना डाटा लेके ड्रा करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रा करेंगे। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट्स स्लोप इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, and all points on this budget lines are attainable and consumer can purchase these points, and जो points inside the budget line है, they are also attainable, but after purchasing those points consumer will have some amount of money left, और जो points इसके right side पे these are not attainable। अब हम क्या ड्रा करते हैं, we try to draw indifference का मैप। ये आप I1 अज्यूम कर लें, I2 एंड I3, ये आपका इंडिफरेंस का मैप है। ये आपके इंडिफरेंस कर्व्स हैं। आप जो लोएस्ट कर्व है उसको आप शो करें, इट इज़ 1, सेकंड इज 2 एंड मीन के अगर आपने डाटा ड्रा ना करना हो तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस तरह भी शो कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लें, जहाँ पे बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व 2। अब अगर आप इसमें ये कहते हैं कि आपके ये जो कॉम्बिनेशन है ये दीज आर अटेनेबल, फॉर एग्जांपल इस कॉम्बिनेशन को आप एक्स कह लें, वाई कह लें, ई कह लें। आपने अपनी, मैं सिर्फ इसलिए ड्रा कर रही हूँ कि आपको ये पता हो कि ज़रूरी नहीं कि आप बुक वाले जो मार्क्स हैं आपने वही लेने, आपने एक्स को एक्स ही कहना है, वाई को ये। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी, अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा अगर यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया तो एक्स इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बुक में एक्स दिया हुआ था। नाउ आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज गिवन बाय ई, where margin rate of substitution is equal to the price ratio of two commodities, or where the slope of the indifference curve is equal to the slope of budget line at point x. It is also attainable with the given amount of money, but it is at lower indifference curve and it yields a lower level of satisfaction. Point y is also on lower indifference curve, and here if we write any point, for example w, it is desirable because it gives the higher level of satisfaction because this point is on indifference curve 3, but it is not achievable, it is not attainable, consumer cannot purchase it with the given amount of money. So consumer equilibrium is at this point where slope of indifference curve is equal to the slope of budget line, and consumer is at highest possible attainable indifference curve. इसमें बच्चे कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोगों ने कल देखा था, आज यू मे आस्क अबाउट दैट। Indifference curve approach is ordinal approach and it is based on the consumer budget line and indifference curve. The budget line shows all combination of two products that consumer can purchase given product prices and his or her money income. Third point is a change in either
प्रोडक्ट प्राइसेस आर मनी इनकम मूव्स द बजट लाइन। बजट लाइन की लोकेशन कब शिफ्ट हो सकती है? या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो या प्राइस किसी भी कम्युनिटी की चेंज हो। पॉइंट 4, an indifference curve shows all combination of two products that will yield or that will give the same level of total utility to a consumer. Indifference curves are downward sloping and they are convex to the origin. Fifth point is an indifference map consists of a number of indifference curves. The further from the origin, the higher the total utility associated with the curve. कि कर्व जितना ओरिजिन से फर्दर होगा, फार अवे होगा, उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो यील्ड करेगा टू द कंज्यूमर। अगर बिल्कुल ओरिजिन के करीब होगा, इट इज नियर टू द ओरिजिन, इट मीन इट इज शोइंग द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस चीज को हम कहेंगे? व्हेन हिज यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, टोटल यूटिलिटी, at the point on the budget line that lies on the highest attainable indifference curve। budget line का ऐसा point जो highest attainable indifference curve पे हो, वो consumer equilibrium है। at that point the budget line and difference curves are tangent to each other। वो क्रॉस नहीं कर रहे होते बल्कि उस पॉइंट पे टेंजेंट होती हैं, क्योंकि अगर क्रॉस वाला आप कोई पॉइंट लें तो उससे कोई हायर पॉइंट्स होता है जिसके इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है। Changing the prices of one product shifts the budget line and determines a new equilibrium point. A sloping demand curve can be determined by plotting the price quantity combination associated with two or more equilibrium points.